یہاں شہر سے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں، آ جائیں گے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں یار مجھے ابھی ملاقات کرنی ہے، چلو اگر ہو سکے تو انہی کے گاؤں میں ہمیں لے کر کے چلو۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑا اور لے کر کے چلے خواجہ حسن بصری کو۔ آپ گئے، جانے کے بعد میں قبرستان کے جو راستہ قبرستان کی طرف جاتا اسی قبرستان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ وزیر نے کہا حضرت ٹھہر جائیے گا، بادشاہ کچھ ہی دیر کے بعد آنے والا ہوگا اور وہیں آپ ان سے ملاقات کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ خواجہ حسن بصری بھی کھڑے ہیں، یہ وزیر بھی کھڑا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا پیارے، وزیر بھی کھڑا ہے، خواجہ حسن بصری بھی کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی کشمکش میں اسی کے پاس میں بازو میں ایک چھوٹی سی قبر ہے، اسی قبر کو دیکھا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے میں وہاں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر کا حصہ گزرا ہے، جیسی تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا اس قبر جو چھوٹی قبر بنی ہوئی تھی اسی قبر کے پاس میں، او بھائی ذرا خیال کرنا ہم کتنے گناہ کر کے بیٹھے ہیں، ذرا احساس کرنا ایک دن موت ہمیں بھی آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس قبر کے پاس میں سب سے پہلے تو اس گاؤں کے جو بہت بڑے بڑے پائے کے بزرگ تھے وہ سارے بزرگ آئے ہیں۔ آنے کے بعد میں اس قبر کے قریب آئے، قبر کا چکر لگایا اور چکر لگانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سی رسم نبھائی جا رہی ہے۔ میں نے وزیر سے پوچھا وزیر ذرا بتا تو صحیح آخر یہ کون سا معاملہ ہے کہ لوگ آتے ہیں چکر لگا کے چلے جاتے ہیں، جیسی اتنی بات کہی ہے۔ وزیر کہتا حضرت ابھی خاموش کھڑے رہیں، ذرا دیکھتے رہیے گا، اتنی بات ہوئی ہے، ابھی بڑے بڑے جو اس قوم کے بزرگ تھے وہ آ کے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد میں کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسی گاؤں کے اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء آئے ہیں۔ آنے کے بعد میں سارے علماء نے اس بچے کی قبر کا چکر لگایا ہے اور لگانے کے بعد میں سارے کے سارے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، اس کے بعد میں اسی قوم کے بڑے حافظ آتے ہیں، حفاظ قرآن آتے ہیں، آنے کے بعد میں قبر کا چکر لگایا، لگانے کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری ہے، اسی گاؤں کے جو داڑھی والے لوگ تھے وہ آئے ہیں، انہوں نے بھی قبر کا چکر لگایا، لگانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری ہے، گزرنے کے بعد میں اسی قوم کے جو عام لوگ تھے، کسان مزدور لوگ تھے وہ آئے ہیں اور آنے کے بعد میں قبر کا چکر لگایا اور لگانے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں اے میرے پروردگار بتا تو صحیح آخر یہ ماجرا کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بڑے بزرگ آئے چکر لگا کے چلے گئے ہیں، علماء آئے چکر لگا کے چلے گئے، فضلاء آئے چکر لگا کے چلے گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے، اسی گاؤں کے ننھے ننھے بچے آئے ہیں، سب نے چکر لگایا ہے، چلے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اچانک اسی گھر کی اسی گاؤں کی بڑی بڑی حسینائیں آئی ہیں، بڑی خوبصورت بیٹیاں آئی، آنے کے بعد چلی گئی ہے۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرے پروردگار ماجرا کیا ہے، میں نے وزیر کو اشارہ کیا وہ یار پتا تو صحیح آخر یہ کون سی رسم نبھائی جا رہی ہے۔ کہ حضور ٹھہر جائیں ابھی دیکھتے رہیے گا۔ ابھی اچانک وقت گزرا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد جس بادشاہ کا انتظار تھا وہی بادشاہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ آنے کے بعد میں اس نے دیکھا ہے اپنے قبر پہ آیا ہے اور قبر پہ بیٹھ جاتا ہے، سرہانے کی طرف یا پائنٹی کی طرف آیا ہے اور اس کا سر کو رکھا ہے اور رونے لگا ہے، سسکیاں بھرنے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی بادشاہ رو ہی رہا تھا، آپ نے پوچھا تھا وہ بتا تو صحیح آخر یہ کون سی رسم ہے، یہ کس لیے نبھائی جا رہی ہے۔ وزیر نے کہا تھا حضور بات یہ ہے آپ جانتے ہو یہ جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کی شادی ہونے کے بعد 10 سال ہو گئے تھے، ایک بھی اولاد اسے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں میرے جوان یہاں پہ موجود ہے، تمہیں خدا کا واسطہ یار اگر ماں باپ سلامت قدر کر لیا کرو، اگر ان کے جنازے اٹھ کے چلے گئے کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوگا، کوئی سینے لگانے والا نہیں ہوگا۔ اور جناب جب باپ کا جنازہ اٹھ کے جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے ماما آتے ہیں، خالو آتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پریشان مت ہونا بیٹے ہم تیرا ساتھ نبھائیں گے۔ لیکن اللہ اکبر آج وہی چچا وہی تاؤ جو کل آنے کے بعد میں ہمتیں باندھ رہے تھے ابھی 40واں نہیں گزرتا ہے 2 ٹکے کی زمین پہ بگڑ جاتے ہیں۔
ہیں, जेलों तक कहानी पहुंचा दी जाती है, कोर्ट कचहरियों में जाकर के केस हो जाते हैं. और यार ख्याल करना, ये बाप बड़ी असीम नेमत होती है. अब सुने जरा प्यारे, ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मैंने देखा था, उसने बताया कि बादशाह ने 10 साल के बाद में अल्लाह ने एक बेटा दिया, और जैसी बेटा दिया था कुछ दिन जिंदा रहा है, अचानक उसका इंतकाल हो गया है. जब इंतकाल हुआ, ये बादशाह के उसी बेटे की कब्र है. का फिर ये मतलब तो बताओ, इस पे मौलवियों के चक्कर लगाने का क्या मतलब है, हसीनाओं के चक्कर लगाने का क्या मतलब है. जैसी इतनी बात कही है, अल्लाह अकबर. उसने कहा था बात ये है, जब इंतकाल होने के बाद में ये बादशाह अपने बेटे की कब्र पे हर साल आता है और गांव वालों से कहता है, ओ गांव वालों चाहो मेरे बेटे की कब्र पे चक्कर लगाओ, और फिर बाद में आके अपने बेटे से कहता है, ए मेरे बेटे देख, खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है, मैंने तेरी कब्र पे सारे मौलवियों को लाके खड़ा कर दिया है, मगर तेरी जान न बचा सका. का मतलब क्या है? तो सुनो प्यारे, वो बादशाह कहता था मेरे बेटे देख, एक सांस में न बचा सका, अगर एक सांस बचाने का मौका मिल जाता, अगर किसी भी सूरत से एक सांस भी बच जाती तो मैं सब कुछ कुर्बान कर देता. वो कहता है बेटे देख, मैंने तेरी कब्र पे उलमा को लाके खड़ा कर दिया, अगर सारे उलमा की गर्दन काटने के बाद में तेरी जान बचाई जाती, मैं उलमा को कुर्बान कर लेता, मगर तेरी जान बचा देता. ए मेरे बेटे, अगर तेरी जान बचाई जाती तो मैं सारे गांव वालों को खत्म कर देता, मगर तेरी एक सांस बचा लेता. ए मेरे बेटे देख, मैंने सारे गांव की हसीनाओं को तेरी कब्र पे लाके खड़ा कर दिया है, अगर इनका हुस्न बेचने के बाद तेरी जान का एक सांस बचाया जाता, मैं हुस्न बेच देता और तेरी जान का एक सांस बचा लेता. मगर मेरे लाल, मैं क्या करूं, ये खुदा का फैसला है, जान बच नहीं सकती है. इसलिए मैं कहता हूं, ओ भाई आज ही कद्र कर लो, और आज जिंदगी खुदा ने दी है तो अपने पैरों पे चलकर मस्जिद की तरफ आ जाओ, अपने खुदा को मना लो. इसलिए कि अगर वो राजी हो गया तो ठिकाना जन्नत बना दिया जाएगा, और अगर वो नाराज हो गया तो न यहाँ सुकून से रहोगे न मर के वहां सुकून से रह सकते. नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रियाज रजा नईमी, महफिले इसाले सवाब, महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर. भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. कद्र करो, इस जिंदगी अल्लाह ने दी है तो इसको बर्बादियों के अड्डों पे जाकर के, ताशों में जाकर के न लुटाओ. भाई खुदारा मेहरबानी करो, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है इम्तिहान के लिए, कामयाब हो जाओ इस इम्तिहान में. हमने क्या किया भाई दुनिया में आने के बाद में, क्या किया? सिर्फ मक्कारियां. हमने क्या किया दुनिया में आने के बाद? जुमा टू जुमा मस्जिद. तो भाई ख्याल करो, अभी इस्लाह हो रही थी, एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके छोड़ने से 2,88,00,000 बरस तक जहन्नम में जलाया जाएगा. है हिम्मत किसी की जो चूल्हे की आग को हाथ में? किसी की नहीं है. हाँ, अच्छे अच्छों के पित्ते पानी हो जाया करते हैं. तो फिर हमें ख्याल क्यों नहीं आता यार, 40-50 साल की जिंदगी, और अब तो बड़ी मुश्किल से हो रही है इतनी, 30 साल में निबट ले आदमी, अब नहीं हो रहा ज्यादा. फिर किस बात पे घमंड करके बैठे हैं? क्या करने हमें दुनिया में भेजा था? रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए भेजा था, और हमने उसी की इबादत को पसे पुष्ट डाल दिया. हजरत यही हालात हैं. मस्जिदों में देखो तो जुमे में नमाजी नजर आते हैं, उसके अलावा हमने देखा 4 से 5 नमाज. ऐसा लगता है कि गांव में मुसलमान ही नहीं है. जनाजे निकल गए. तो खुदारा ख्याल करो मेरे अजीजों, एक न एक दिन सबके सामने हम पड़े होंगे, मौलवी नमाज पढ़ाएगा, तो फिर कोई चीज हमें बचाने के लिए नहीं आ सकती है, फिर कोई हमारा अमल ऐसा नहीं हमारे पास जो हमें बचा सके. मौत एक न एक दिन आनी है. हाँ, एक न एक दिन मौत आनी है. मेरे भाई ख्याल करो, जैसे आज हाजी असगर हुसैन साहब का 10 दिन कब्र जनाजा उठा, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह को हम सुकून की नींद सोएं और सुबह को हमारी आंख ही न खुल सके, कयामत तक के लिए आंख बंद कर दी जाए. इसलिए इस मौत की तैयारी कर लो. कितनों के हमने दिल दुखाए, कितनों के हक खा करके हम बैठे. ख्याल करो जरा, एहसास करो जिंदगी में आने के बाद में. नमाजी भी है अगर, बेशक 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, तो सुबह से शाम तक कितनों के दिल दुखा के बैठा है अगर नमाज पढ़ रहा है तो. हाँ, और उसी पे घमंड करके बैठा, 36 को टोकता रास्तों में चलते चलते, 36 को नमाजी है. तो भाई ये 56 इंच का सीना करके रास्तों में चलना छोड़ो, छोड़ो ये घमंड की पट्टियां बांधना.
اور سیکھو درس میرے مصطفیٰ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت تیزی کے ساتھ میں بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیکھو میرے حضور سے، ہاں میرے نبی سے سیکھو درس، اور پوری زندگی سرکار کی نمونے عمل ہے، ساری زندگی ہمارے لیے نمونے عمل ہے میرے عزیزو، ساری زندگی نمونے عمل ہے میرے عزیزو۔ مصطفیٰ کی خیال کرو اور ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرو۔ جانتے ہو آج ہمارا معاملہ یہ ہے، آج تو جناب بیٹا باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہوتا ہے، بیٹا باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہے، بیٹی ماں کی بات کرنے تیار نہیں ہے، چھوٹا بڑے کی بات ماننے تیار نہیں ہے، عزت ہی نہیں کرتے۔ تو بھائی خیال کرو، دیکھ پوچھ میرے مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، ظاہری وقت مصطفیٰ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، بس یہ آخری بات کرنے لگا ہوں، ہاں بس توجہ میری طرف تھوڑی سی۔ میرے حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال کا جب وقت قریب آیا، جانتے ہو دیکھو سیکھو مصطفیٰ سے درس۔ تم ربیع الاول شریف آنے والی ہے، ہاں یہ سچائی بیان کر رہا ہوں میں، ربیع النور شریف آنے والی ہے، سارے جوانوں کے ماتھوں پہ پٹیاں ہوں گی، ہاں سارے جوانوں کے ماتھوں پہ ہوں گی، جھنڈے اٹھا کے کہیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اسی دن ظہر کی نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا آخر میں، اسی دن سو جائے گا۔ کون سا نبی کا دامن ہے یار؟ دیکھ درس مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، ظاہری وصال کا وقت جب میرے حضور کا قریب آیا تو جانتے ہو پیارے، وصال کا وقت قریب آنے کے بعد میرے کریم آقا نے جمع کیا سارے صحابہ کو۔ ان میں سے ایک روایت میں آتا حضرت سلمان فارسی کا ذکر، ایک روایت میں آتا حضرت بلال حبشی کا ذکر۔ صاحب طبقات نے اس کو لکھا، طبقات ابن سعد میں لکھا گیا، اس کو فرمایا گیا میرے حضور مسجد نبوی میں سہارا لے کر کا حضرت ابن عباس کا، اور اس کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا بلال، کہا جی یا رسول اللہ، کہا جاؤ نکل جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج مصطفیٰ نے تمہیں مدینے میں مسجد میں بلایا ہے، جمع کیا ہے۔ بلال گئے ہیں، جانے کے بعد اعلان کر دیا چلو مصطفیٰ مسجد میں بلا رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی جنگ کا معاملہ پیش ہو، مصطفیٰ کوئی بات سمجھائیں گے، یہ بات سوچ کر کے سارے لوگ مسجد نبوی کے اندر آئے۔ اللہ اکبر، جیسی میرے حضور نے دیکھا ہے سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز ہے پیارے کہ بتقاضے بشریت ظاہری طور پہ میرے کریم آقا سے اپنے آپ اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے منبر سے ارشاد فرمایا، او لوگو آج اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ چاہے تو وہ رب کی بارگاہ میں چلا جائے یا دنیا میں ہی رہے، لیکن اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا کر کے فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات کہی ہے، حضرت ابو بکر کی آنکھ میں آنسو آئے، لوگ کہنے لگے ابو بکر کس لیے رو رہے ہو؟ جیسی اتنا کہا ہے، حضرت ابو بکر کہتے لوگوں تمہیں نہیں پتا مصطفیٰ اپنی دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ جیسی اتنی بات کہی ہے صحابہ کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں، صحابہ رونے لگے ہیں۔ اس کے بعد میرے سرکار نے فرمایا او لوگو اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہو تو مجھ سے آ کر کے لے لینا۔ یار ذرا خیال تو کرنا، یہ نبی ہو کر کے جس نے مسجد اقصی میں آدم کی امامت کی ہو، جس نے مسجد اقصی میں عیسیٰ روح اللہ کی امامت کی ہو، اللہ اکبر، وہ مدینے والا مصطفیٰ جو امام الانبیاء بن کے چمکے ہو، اللہ اکبر، جو رحمت للعالمین بن کے خدا نے دنیا میں بھیجا ہو۔ جانتے ہو میرے عزیز آج یہ آقا غلاموں سے کہہ رہا ہے او لوگوں اگر کسی کا مجھ پہ حق ہو تو لے لو یا معاف کر دو۔ اللہ اکبر، جیسی اتنا کہا ہے ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے آقا میرا کچھ حق بنتا ہے۔ 11 درہم ان کے مصطفیٰ پہ آ رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا فضل ابن عباس، کہا جی یا رسول اللہ، کہا ان کا حق ان کو دے دو، ان کو 11 درہم دے دیے گئے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا کوئی ایسا تو نہیں ہے جس پہ کسی کا حق مجھ پہ تو نہیں آ رہا ہے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے ایک صحابی اٹھے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میرا حق آپ کے اوپر آتا ہے۔ صحابہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ یار نبی کے اوپر کس کا حق آ گیا ہے؟ جیسی اتنا کہا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا حق آ رہا ہے؟ وہ یار وہ صحابی تھے، ان کا نام حضرت عکاشہ ہے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد میں کہا تھا آقا میرا حق آپ پہ آ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کون سا حق ہے؟ جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حق میرا یہ ہے، ایک مرتبہ آپ جنگ کے موقع پہ صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے، یا رسول اللہ اچانک آپ کا ایک کوڑا میری ننگی پیٹھ پہ لگ گیا تھا، آقا میں وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جیسی اتنا سنا ہے ابو بکر پیر پکڑ کے کہتے ہیں وہ یار عکاشہ بتا تو صحیح، جان تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، وہ عکاشہ بتا تو صحیح آخر آج کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم کس سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو؟ کیا
नबी से अपना बदला लोगे? क्या आका पे कोड़े लगाओगे? अल्लाह अकबर। सहाबा की आंखें बरसने लगी है, लेकिन मुस्तफा की आंखें, सहाबा की आंखें बरसी हैं, मगर उकाशा कुछ और ही कह रहे थे। कहा मुझे नहीं बदला लेना है मुस्तफा से, मुझे बदला जरूर लेना है आका से। अल्लाह अकबर। ये बात कर रहे हैं। हजरत अली कहते हैं ओ उकाशा देख, अगर बदला लेना है तो अभी अली सलामत है, अभी अली जिंदा है, बदन के टुकड़े टुकड़े गवारा है मुझे, लेकिन मेरे यार के बदन पे कोड़ा न मार देना। उकाशा ये तो तू भी देख रहा है मुस्तफा की तबीयत कितनी नासाज है। उकाशा ये तो तुझे भी पता है मुस्तफा कितने बीमार हो रहे हैं। बज़ाहिर आका से अपने आप खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। उकाशा देख क्यों नहीं रहा है? हजरत बिलाल की चीख निकल जाती है, सलमान फारसी की चीख निकली है। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल कहा जी या रसूल अल्लाह, का लाओ कोड़ा दो और उकाशा के हवाले करो। मेरे नबी की बारगाह में अबू बकर खड़े होकर कहते हैं उकाशा ठहर जाओ, अगर कोड़ा मारना है तो मेरे मार दो। हजरत उमर कहते हैं उकाशा ठहर जाओ। मेरे नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस या अबा बकर, तफद्दल बिल जुलूस या उमर। ए उमर बैठ जाओ, ए अबू बकर बैठ जाओ, आज उकाशा को बदला लेने दो। अल्लाह अकबर। जैसी इतनी बात कही है, मुस्तफा की बात थी इसलिए बैठ गए, वरना हजरत उमर का इरादा यह था अभी तलवार निकाली जाए, उकाशा की गर्दन काट दी जाए। लेकिन अल्लाह अकबर। हजरत उकाशा खड़े होकर कह रहे हैं आका मेरा हक आप पे बनता है, मुझे कोड़े का बदला चाहिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है अगर बदला लेना है तो फिर आ। हजरत बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल कहा जी या रसूल अल्लाह, का लाओ कोड़ा उकाशा के हवाले कर दो। जैसी इतनी बात कही है वो जरा ख्याल करना, वो नबी नबी होकर के अपने गुलामों को बदला दे रहे हैं। फिर एक जवान बेटे को बूढ़े बाप के सामने आंखें निकालते हुए गैरत क्यों नहीं आती है? ए यार मुझे बता, अगर तू 10,000 कमाने के काबिल बन गया है, तूने बाप को आंखें दिखा के बोलना शुरू कर दिया, माँ को आंखें दिखा के बोलना शुरू कर दिया, पैसों का तूने बहाने शुरू कर दिए। ओ जनाब आज तो आलम यह है, एक सगा बेटा बाप से कहता है हर महीने 25,000 डाल रहा हूँ, हर महीने 20,000 डाल रहा हूँ, बता तो सही वो पैसे कहाँ पे गए हैं? ओ यार बाप बेटा आज अपने बाप से हिसाब लेने लगा है और तुझे नहीं पता वो प्यारे इस बाप का मर्तबा तो वो है। मेरे नबी आए, मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ लाए हैं, तुमने माँ बाप को 4,000 रुपए की बुनियाद पर, 4 टकों की बुनियाद पर 4 खानदान वालों के सामने जलील और रुस्वा किया है। और प्यारे देख मेरे नबी की बारगाह में मुल्क यमन से सहाबी आए, मेरे नबी ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा आपके कदमों में दिन गुजारना है, आपके कदमों में रात गुजारनी है। नबी ने फरमाया बता तो सही माँ अहयुन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा है? कहा का बाप भी जिंदा है, मेरी माँ भी जिंदा है। कहा बता बाप से इजाजत लेके आया कि नहीं आया, माँ से इजाजत लेके आया कि नहीं आया? कहते या रसूल अल्लाह मैं बाप से भी इजाजत लेके आया हूँ, माँ से इजाजत लेके आया हूँ। का इजाजत दी कि नहीं दी? का माँ बाप ने इजाजत दे दी। का फिर ये बता जब घर से निकल के आया था तो माँ की आंख में आंसू तो न था, बाप की आंख में आंसू तो न था? जैसे इतना कहा है सहाबी की गर्दन झुकी है, कहते या रसूल अल्लाह मेरे बाप की आंख में भी आंसू था, मेरी माँ की आंख में भी आंसू था। और जब इतना सुना है नबुव्वत की आंखों में जलाल आ जाता है। और सुनो प्यारे अल्लाहू अकबर, आज तक नबी की आंख में जलाल नहीं आया मगर माँ बाप की आंख में आंसू देखा, नबुव्वत की आंखों में जलाल आया और इरशाद फरमाया और सुन अगर मेरे कदमों में माँ बाप को रुला के आया है जन्नत नहीं मिल सकती है, ना मैं राजी हो सकता हूँ ना खुदा राजी हो सकता है। अगर राजी करना है तो इरजी इलैहिमा फादहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, आका फरमाते जा वापस चला जा, जैसे माँ बाप को रुला के आया है वैसे लबों पे मुस्कुराहट दे दे, तुझसे तेरा मदीने वाला भी राजी होगा, अर्शो वाला खुदा भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई खुदारा मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, आज बेटा बाप का हक मार के सो जाता है, बाप भी अब हक नहीं है। शाम को रात को बाप को 6 आंखें निकाल करके देख करके सो गया, ये हक मारना नहीं है। माँ ने पूछ लिया इतनी रात में कहां से आ रहा है? हाँ भाई सुने, शाम को आता है, माँ ने कह दिया जरा सा कुछ, तो कहता बड़बड़ कम बोला करो जरा तुम,
ये माँ बाप का हक मारना नहीं है। उनको नाराज करके रात को सोए और वो पूरी रात ये सोच के रोते रहे पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया। बहरहाल मैं बात जहाँ कर रहा था, वापस पलट के आता हूँ, कितनों के हक हमने मारे, वो जवान बेटा बाप का हक मारना नहीं छोड़ रहा। देख अब जरा तवज्जो से सुनना, मेरे नबी की बारगाह में हजरत बिलाल ने कोड़ा दिया, कहा बिलाल कोड़ा उकाशा को दे दो। हजरत उकाशा ने कोड़ा लिया और उसके बाद कहा आका एक बात बताएं। कहा कौन सी बात? कहा अगर मैं बिलाल के कोड़े से मारूंगा तो क्या हक अदा हो जाएगा? कहा नहीं होगा, नहीं होगा। जिस कोड़े से मैंने तुम्हें मारा था उसी कोड़े से तुम भी लो। तो हजरत उकाशा कहते हैं फिर आका वो कोड़ा आपकी बेटी फातिमा ज़हरा के घर पे रखा है, उस कोड़े को मंगवाया जाए। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल या फरमाया सलमान? कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा जाओ मेरी बेटी के घर से वो कोड़ा लेते आओ। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल गए हैं, दस्तक दी है दरवाजे पे, अंदर से आवाज आई है मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया है? कहा आज बिलाल आया है। कहा बिलाल किस लिए आए हो? कहा आपके घर मुस्तफा का कोड़ा रखा है, लाओ वो कोड़ा ला करके दे दो। कहा आज तो मुस्तफा की तबीयत भी बड़ी नासाज है, कोई जंग का मौका भी नहीं है, फिर मुस्तफा कोड़ा किस लिए मंगा रहे हैं? इसरार जब खातून जन्नत ने किया है, हजरत बिलाल कहते हैं फातिमा तो ज़हरा से वो मुस्तफा की शहजादी खातून जन्नत। बात यह है मुस्तफा ने जमा किया था। एक सहाबी खड़े होकर कहे, मुस्तफा ने पूछा था किसी का हक तो मुझ पे नहीं है। एक सहाबी उकाशा नाम के खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है मेरा हक आता है मुस्तफा पे। वो हक ये है कि उनको सफ़े सीधी करते वक्त एक मर्तबा मुस्तफा से पीठ पे कोड़ा लग गया था, वो ये बदला लेना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। आज खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गया है, कोड़ा भी उतार के दिया। वो फरमाया बिलाल ठहर जाओ। आवाज लगाई ऐनल हसन वल हुसैन, ए मेरे बेटे हसन और हुसैन कहाँ है? कहाँ हो हसन हुसैन? तआलई इलैया, ए मेरे बेटे हुसैन आजा, मेरे बेटे हसन आजा। करीब आए हैं। कहा था बेटे तुम्हें पता है, सुना है कोई उकाशा नाम का एक शख्स है जो नबी से बदला लेना चाहता है, और तुम तो जानते हो ना बेटे तुम्हारे नाना की तबीयत कितनी नासाज है। देखो जाओ और साथ में चले जाओ, अपने नाना के कोड़ा लगने नहीं देना, अपने नाना के कोड़ा न लगने देना। मेरे लाल अगर वो एक कोड़ा मारे तो तुम 100 कोड़े उसके बदले में खा लेना, मगर तुम्हारे नाना के कोड़ा लगना नहीं चाहिए। जैसी इतनी बात कही है। अल्लाह अकबर। हजरत आका हसनैन करीमैन गए हैं, हजरत बिलाल के साथ में जा रहे हैं, हजरत बिलाल के साथ में मस्जिद नबवी में शामिल हुए हैं। जाके फौरन कहने लगे हैं ऐना उकाशा, उकाशा कहाँ है? उकाशा कहाँ है? कौन है आका उकाशा? ए मेरे नाना बताओ तो सही, ये उकाशा कहाँ है? अल्लाह अकबर। हजरत मौला कायनात ने कहा था उकाशा ठहर जाओ, उकाशा ठहर जाओ, मुस्तफा पे कोड़ा ना मार देना। देख मैंने अपने दोनों बेटों को दे दिया है, मैं हसन को दे के जा रहा हूँ, मैं हुसैन को दे के जा रहा हूँ। अगर हसन हुसैन से भी दिल ना भरे तो अली के टुकड़े टुकड़े करके डाल देना, अली के बदन के खून की बूंद बूंद निकाल देना, लेकिन मेरे महबूब के कोड़ा ना लगा। तुझे पता है ना मेरे यार की तबीयत कितनी खराब है। ओ उकाशा तू समझता क्यों नहीं है? मगर उकाशा है कि समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहते नहीं मुझे नबी से बदला लेना है। हजरत उकाशा ने कोड़ा लिया है, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल बैठ जाओ, हसनैन बैठ जाओ। दोनों नवासे बैठे हैं। उसके बाद मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कोड़े को लिया है और कहा था बिलाल कोड़ा उकाशा को दे दो। अब तवज्जो करना, हजरत उकाशा ने कोड़ा लिया, लेने के बाद मेरे नबी ने फरमाया उकाशा कोड़ा मारते क्यों नहीं हो? कहती या रसूल अल्लाह जब मेरे कोड़ा लगा था मेरी पीठ पे कोई कपड़ा ना था, आका मेरी नंगी पीठ थी, आप भी अपने बदन से कपड़ा हटाइएगा। जैसी इतनी बात कही है अल्लाह अकबर। अब सहाबा की चीखें निकलने लग जाती हैं, उकाशा 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 ठहर जाओ यार, नबी के कोड़ा ना लगा, तुझे पता है ना तू पीठ नंगी करवाने लगा है। अल्लाह अकबर। अजीब मंजर था प्यारे, कयामत सुगरा मस्जिद नबवी में आई हुई है, चीखों पे चीखें निकल रही है, बाद सहाबा बेहोश होने लगे हैं। अल्लाह अकबर। अजीब मंजर हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा खामोश हो जाओ। उसके बाद रिसालत के हाथों से लिबास नबुव्वत मुस्तफा ने उतार दिया है। जैसे लिबास उतरा है ऐसा लग रहा था आसमान फटने वाला है, जमीन टूटने वाली है, चांदो सूरज जमीन पे आने वाले हैं, जर्रा जर्रा सिसक रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने लिबास उतारा है, जैसे लिबास उतारा मुस्तफा ने फरमाया उकाशा मार कोड़ा। जैसे इतना कहा है अब यही उकाशा जो कोड़ा मार रहा था, इन्हीं उकाशा ने कोड़े को हाथ में लिया है, करीब गए हैं मुस्तफा के और यूं कोड़े को हवा में लहराया है और लहरा के दूर फेंक के मारा है और यूं बाजू फैला है और मुस्तफा के जाकर के जसद अनवर से लिपट जाते हैं और चीख मार के कहते हैं या
रसूल अल्लाह ये जान आपके कदमों में मिली है, हमसे तो बोलना भी नहीं आता था, ये बोलने का सलीका आपसे मिला है, चलने का सलीका आपसे मिला है, या अल्लाह या रसूल अल्लाह ये इज्जतें आपसे मिली है। आका हमें तो बोलना तक नहीं आता था, जमीन पे रहना नहीं आता था, ये सब कुछ आपके करम से मिला है। हमारी क्या औकात कि आपसे बदला ले सके। ये फिर मेरे नबी ने फरमाया उकाशा बता फिर ये इतना एहतमाम किस लिए कराया। कहते या रसूल अल्लाह सुना है जो जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाया करता है उसे जहन्नम की आग नहीं जलाती है, इसलिए एहतमाम कराया था। और सरकार ये जो शान अनवर के दरमियान में मोहरे नबुव्वत लगी है इस मोहर को चूमने के लिए किया था और मोहरे नबुव्वत को चूमा। उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह बात कोड़े की नहीं है, ये तो फकत एक बहाना है, हकीकत में तो मोहरे नबुव्वत को सीने से लगाना था, जसद अनवर को लगाना था। जब इतना कहा है नबुव्वत की आंख में आंसू आए और उसके बाद मेरे नबी ने सहाबा से कहा था और सुनो अगर किसी को जन्नती का चेहरा देखना हो तो मेरे उकाशा के चेहरे की जियारत कर ले, उसने जन्नती का चेहरा देख। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिल इसाले सवाब, महफिल इसाले सवाब। उसने जन्नती का चेहरा देख लिया। अजीजो मेरे हुजूर ने जाते जाते दुनिया से आका ने ऐलान फरमाया, वो आका होकर के हमने कितनों के दिल दुखाए सुबह से शाम तक, सगे भाई की पीठ में एक बालिश जमीन के ऊपर खंजर घोंप के चले जाते हैं। इसलिए अजीजो अपनी जिंदगी को मेरे अजीजों अपनी जिंदगी को मुस्तफा की जिंदगी के सांचे में ढालो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। हाँ बस फरमाइश के मुताबिक 2 शेर और पढ़ दें, उसके बाद बात खत्म। जरा जी लगा लें और मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी लगा के मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूलुल्लाह। ये फरमाइश पढ़ देता हूँ। हम अपना सोया मुकद्दर जगा के सोते हैं, हम अपना सोया हम अपना सोया मुकद्दर जगा के सोते हैं, रसूल पाक को अरे नाते सुना के सोते हैं, रसूल पाक को। आखिरी शेर माँ के हवाले से जी लगा लें और अपने माँ बाप के नाम पे हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है। जो माँ के कदमों का अरे तकिया लगा के सोते हैं, जो माँ के कदमों का तकिया लगा के सोते हैं, हम अपना सोया। जो हुए अगला उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। अगर जिंदगी ने दी साथ का इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।